بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم جملہ اسمیہ کا جو سبق ہے اس کا پوائنٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ پیج نمبر 44 ہے، عربی کے معلم کا پہلا حصہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 آج ہم پڑھنے جائیں گے۔ لیکن ابھی تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، اور ایک مبتدا ہے ایک خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی نارمل ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے، جیسے الرجل، اتنی ساری مثالیں کل ہم نے پڑھی۔ صادق، کیا پڑھا تھا؟ الرجل صادق، مرد سچا ہے۔ البنت صالحۃ، لڑکی نیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے کوئی بھی ہم مثال بنا سکتے ہیں۔ الثمر حلو، پھل میٹھا ہے۔ اب آج یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عربی زبان میں کہ مبتدا دو ہوتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے ایک مبتدا والا پڑھا تھا نا، جیسے میں الثمر والی مثال لکھ لیتا ہوں۔ الثمر حلو والی جو مثال ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لکھ کر۔ الثمر حلو، ٹھیک ہے، پھل میٹھا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں، انہوں نے پوائنٹ نمبر 6 میں کیا کہا ہے کہ اگر مبتدا دو ہوں اور جنس میں مختلف ہوں، یعنی ایک مذکر دوسرا مؤنث، تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے قاعدے میں ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ مبتدا دو بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مبتدا دو ہوں تو خبر بھی دو ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ہم مثال کے طور پر یہ دیکھیں، ایک مثال میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں۔ الرجل مرد، والولد، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ مرد اور لڑکا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں نیک ہیں، تو میں کیسے کہوں گا کامران بھائی؟ الرجل والولد نیک ہیں، کیا کہیں گے؟ صالحان، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں، دیکھیں، غور سے دیکھنے والی بات ہے۔ الرجل، جب میں نے یہ بات کہی کہ الرجل والولد صالحان، مرد اور لڑکا دونوں نیک ہیں، تو یہاں پر آپ غور کریں، الرجل اور ولد جو ہے نا، والولد، یہ دونوں مبتدا ہیں۔ جب مبتدا دو ہوں گے تو خبر بھی دو ہو جائے گی، تسنیہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور کیونکہ یہ دونوں مذکر ہیں تو خبر بھی مذکر ہے۔ الرجل والولد صالحان، بولیں، مرد اور لڑکا دونوں نیک ہیں۔ یہاں پر سارے مذکر ہیں تو مذکر مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ اب میں دو مؤنث کی مثال بناتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب میں یہ کہتا ہوں المرأۃ والبنت، عورت اور لڑکی۔ اب اگر میں اسی مثال کو بنانا چاہتا ہوں، عورت اور لڑکی دونوں نیک ہیں، تو اس میں آپ بتائیں کیسے کہیں گی؟ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، سن سا پا رہی ہیں تو آپ؟ جی سر، آ رہی ہے۔ ہاں بولیے اب آپ۔ سر اس کو بولیں گے المرأۃ والبنت صالحتان۔ شاباش، نہیں صحیح کہا ہے آپ نے، کنفیوز نہ ہو۔ المرأۃ، بس میم کو زبر دے دیں، المرأۃ والبنت صالحتان، عورت اور لڑکی دونوں نیک ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، عورت اور لڑکی یہ دونوں مبتدا ہو اور صالحتان اس کی خبر ہے، تو کیونکہ یہ دونوں مؤنث ہے تو دونوں مؤنث ہو گئے۔ اب پوائنٹ نمبر 6 میں جو قاعدہ بتانا چاہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جملے میں دو مبتدا آ رہے ہوں اور وہ دونوں جنس میں مختلف ہو، یعنی ایک مذکر ہو ایک مؤنث ہو، تو آپ یہ جو اوپر والی مثال ہے نا، الرجل والولد والمرأۃ والبنت، ان میں دونوں میں سے ایک ایک کو لے لیں۔ مثال کے طور پر ایک مذکر لے لیں، ایک مؤنث لے لیں۔ الرجل لے لیتا ہوں میں اور کہتا ہوں والمرأۃ، کیا کہا میں نے؟ الرجل والمرأۃ۔ اب دیکھیں، مرد مذکر ہے، رجل مذکر ہے، مرأہ عورت مؤنث ہے۔ اب ہم خبر کو کیا لائیں؟ ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے۔ اگر اب ہم خبر بولتے ہیں الرجل والمرأۃ صالحان، تو دونوں مذکر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں الرجل والمرأۃ صالحتان، تو دونوں مؤنث ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم خبر کو یہاں مذکر والا رکھیں گے یا مؤنث والا رکھیں گے؟ کوئی نہ کوئی ایک تو رکھنا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر مبتدا دو ہوں، جس میں مختلف ہوں، ایک مذکر ہو دوسرا مؤنث ہو، جیسے کہ یہاں ہے الرجل والمرأۃ میں، تو پھر جو ہے نا ہم خبر کو مذکر ہی رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ لہذا ہم یہاں پر صالحان کہیں گے۔ کب کہیں گے یہ بات؟ جب ایک مذکر ایک مؤنث ہوگا، تو مذکر والے لفظ کو ترجیح ہوگی اور خبر کو مذکر رکھتے ہوئے ہم صالحتانی نہیں کہیں گے بلکہ صالحانی کہیں گے۔ تو اب دوبارہ بول رہے ہیں الرجل والمرأۃ صالحان، بولیں۔ اچھا، یہاں انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ الابن والابنۃ حسنان، کیا مطلب ہے؟ لڑکا اور لڑکی دونوں نیک ہیں۔ الابن والابنۃ حسنان، تو یہاں دیکھیں لڑکا اور لڑکی دونوں ہیں، تو حسنتانی نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟
हसनानी, इसका मतलब ये कि यहाँ हसनतानी का भी ऑप्शन था लेकिन वो गलत है, ठीक है ना। तो अगर मुजक्कर मुअन्नस दो जगह जमा हो जाए तो हम खबर में किसकी रियायत करेंगे, मुजक्कर की या मुअन्नस की? मुजक्कर की रियायत करेंगे, खबर को मुजक्कर रखेंगे। अब मैं चाहूंगा आप में से कोई एक ऐसी मिसाल बनाए, उसमें आप मिसाल बना के बता सकती हैं तो बता दें। ऐसी कोई मिसाल सोचें, एक मुजक्कर एक मुअन्नस हो, अपने ध्यान से बनाएं। सर ज़ैदुन, हाँ चलें, एक मिनट, ज़ैदुन, आगे चलें, वाह, ज़ैदुन व आयशा, सही, बिल्कुल सही कहा आपने, वाइशतु, ज़ैदुन व आइशतु, आगे, आयशतु, हसन, इसको हसन, हसनतानी, नहीं सॉरी, हसनन का क्या होगा? हसनानी, क्या होगा? हसनानी, हसनानी। शाबाश, बिल्कुल सही बता आपने, सही कह रही थी आप, हसनानी, क्योंकि हसनतानी नहीं हो सकता, जब मुजक्कर मुअन्नस दोनों जमा हो जाए तो खबर में मुजक्कर वाला ऑप्शन रखेंगे, बस दो का जरूर रखेंगे। अच्छा, अब मैं चाहूंगा सना जो है वो भी आप भी एक मिसाल दे दें, अगर दे सकती हैं, अपने ध्यान से कुछ बना सकती है मिसाल, आप दिमाग में आ रही है मिसाल कि जब मुब्तदा दो हो, मुजक्कर मुअन्नस हो, एक मुजक्कर एक मुअन्नस हो तो खबर मुजक्कर रहेगी, इसकी मिसाल बता दें। आवाज आ रही है? पहली तो बात ये है आपको हमारी। अच्छा अच्छा, खाली उस्मा ही है, वो चली गई, शायद डिस्कनेक्ट हो गई कॉल उनकी। नहीं कह रहा कामरान भाई, आप एक मिसाल बनाए अपने ध्यान से। अल, एक मिनट चले मैं बना रहा हूँ, अल मुअल्लिमु, आगे, वल मुअल्लिमतु, सही है, उस्ताद और उस्तानी, जबरदस्त मिसाल है। अल मुअल्लिमु वल मुअल्लिमतु के लिए क्या है? मुजतहिदानी, मुजतहिद का क्या मतलब होता था? दोबारा बोले, अल मुअल्लिमु वल मुअल्लिमतु मुजतहिदानी, तर्जुमा बताएं। और मुअल्लिमा जो है मेहनती है, दोनों मेहनती हैं, उस्ताद और उस्तानी दोनों मेहनती हैं। अल मुअल्लिम वल मुअल्लिमतु मुजतहिदान। अब हम अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 7 पर। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया, आपको सही में आ गया भाई, सही में आ गया आप लोगों को? जी सर। चले नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, पॉइंट नंबर 7 पर। देखिए पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने क्या कहा है सर, तो इसमें तस्निया का नहीं यूज होगा, मतलब खबर में तस्निया नहीं जाएगा? किसमें, कौन सी खबर में? अगर अगर सर अगर आपका मुब्तदा तस्निया होंगे तो इसमें फिर खबर तस्निया नहीं होगी। खबर तस्निया होगी ना, मसलन आपके ध्यान में कोई दिमाग है, जैसे कोई मिसाल अगर दिमाग में है तो बता दें। जैसे मौलिम और मौलिमतु को अगर हम तस्निया कर दें। हाँ, अच्छा ये बात बोलनी है, अभी देखें, चले बना लेते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा कि मैं मौलिम को तस्निया बनाऊं, कैसे बोलूं? अल मुअल्लिमानी बोल दूं, यूं? नहीं सर, आनी आनी लगेगा ना? जी सर। अल मुअल्लिमानी मैंने लिखा है, ये चाहती हैं आप मिसाल? जी सर। अच्छा, और आगे क्या कहना चाहती हैं, और बोलें अल मुअल्लिमु के बाद? और मौलिमतानी। अच्छा, ये ले मैंने किया, वल मुअल्लिमतानी, ये भी हो गया। अल मुअल्लिमानी वल मुअल्लिमतानी। अब इसका तर्जुमा बताएं पहले मुझे। मौलिम और मौलिमा, दो मौलिम और दो मौलिमा। अब मुझे बताएं, दो और दो कितने हो गए? 4। 4 हो गए। तो 4 जमा में आता है कि वाहिद में आता है? जमा में आएगा। तो अब खबर भी जमा में आ जाएगी। अल मुअल्लिम अल मुअल्लिमानी वल मुअल्लिमतानी सालिहूना, बस ये है कि मुज़क्कर वाली जमा बनेगी, जब भी मुज़क्कर मुअन्नस जमा होगा, जमा हो जाएंगे एक साथ, तब ही हो जाएगा। अल मुअल्लिमानी वल मुअल्लिमतानी, दो उस्ताद और दो उस्तानिया, सालिहूना, सब के सब नेक हैं, यूं हो जाएगा फिर। ठीक है, ये है आपके सवाल का जवाब। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। अब देखें पॉइंट नंबर 7 ये है कि मुब्तदा और खबर कभी मुफरद होते हैं, कभी मुरक्कब हो। एक तो आपने अभी ये बात पढ़ी कि बीच में वाव आता है, जैसे अल मुअल्लिमु वल मुअल्लिमतु, इस तरह अलग अलग आ रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि अब मुब्तदा और खबर कभी ऐसा होता है कि मुरक्कब तौसीफी होते हैं। मिसाल के तौर पर, अभी आपने क्योंकि पढ़ा ही मुरक्कब तौसीफी है तो मैं यूं कह रहा हूँ, कह रहे कभी मुब्तदा और खबर मुफरद होते हैं, अकेले होते हैं, और कभी मुरक्कब होते हैं। अच्छा, मुफरद की सारी जितनी पीछे आपने मिसालें पढ़ी, और रजुलु सादिकुन, मर्द सच्चा है, और रजुलानी सादिकानी, दो मर्द सच्चे हैं, रिजालू सादिकुना, बहुत से मर्द सच्चे। तो जो लफ्ज रजुल है, रजुलानी है, रिजाले है, तो ये एक लफ्ज ना, लेकिन अगर मैं मुरक्कब मिसाल के तौर पर, अभी जितना आपने पढ़ा इससे मैं उसी के लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर मैं मुरक्कब तौसीफी कहता हूँ, और मुरक्कब तौसीफी की मैं आपको एक मिसाल बनाने को कहता हूँ,
कामरान भाई मैं आपको ये कहता हूं कि आप ये बताएं मीठी खजूर इसकी अरबी बताएं, या उसमें आप बता सकती हैं तो आप बोल देना, जिसको भी आती है वो बता दें। हाँ भाई, मीठी खजूर की अरबी क्या बनेगी? ये मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब नाकिस मैंने कहा है आपको। मीठी खजूर बोलें बोलें अतमर चलें। अत्तमरुल अतमरुल तय्यब अतमरुल हुल्व अत्तमरुल हुल्वु। अब देखें ये मुरक्कब तौसीफी है। अब इस पूरे मुरक्कब तौसीफी को यानी अत्तमरुल हुल्वु को हमें मुब्तदा बनाना है और इसके आगे खबर लगानी है, तो फिर हम कैसे कहेंगे? अत्तमरुल हुल्वु और उसको नकिरा कर देंगे। मिसाल के तौर पर इसको यूं कर लें कि मीठी खजूर अच्छी है, उम्दा है, तो हम यूं कर देते हैं अत्तमरुल हुल्वु तय्यिबुन। ये हो गई मिसाल। मतलब ये है कि अगर मुब्तदा पूरा मुरक्कब बनाना हो, अब देखिए यहाँ पता है क्या हुआ है, यहाँ असल में हुआ ये है कि ये जो अत्तमरुल हुल्वु है ना, ये बन गया मुब्तदा यहाँ, और तय्यिबुन इसकी खबर हो गई, जब इसको नकिरा रखा गया। जब इसको हमने क्या रखा है बताइए? नकिरा रखा है। अत्तमरुल हुल्वु तय्यिबुन, मीठी खजूर उम्दा है, अच्छी है, ये मिसाल बन गई। तो यहाँ पर मुब्तदा क्या हो गया? मुरक्कब तौसीफी हो गया, और तय्यिबुन क्या हो गया? खबर हो गया। अच्छा, ये मुरक्कब तौसीफी क्यों है? क्योंकि अत्तमरु मौसूफ है और अल हुल्वु इसकी सिफत है, फिर मौसूफ और सिफत मिलके क्या बन गया? मुब्तदा। और तय्यिबुन क्या बन गया? इसकी खबर बन गई। ये देखें, और से सुने, मैं और भी मिसालें दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगी। अब इन्होंने एक और मिसाल दी, इन्होंने दी है अर रजुलु तय्यिबु हादिरुन। अब आप नोट करें, शुरू में दोनों पे अल है। अर रजुलु तय्यिबु ये मुरक्कब नाक़िस है, इसमें है का तर्जुमा नहीं है, यानी उम्दा आदमी, अच्छा मर्द। हादिरुन मौजूद है, अच्छा मर्द हाजिर है, मौजूद है, ये हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने देखें साइड में लिखा हुआ भी है कि ये जो मुब्तदा है ये मुरक्कब तौसीफी है। मुब्तदा कौन है? अर्रजुलु तय्यिबु है, ये मुरक्कब तौसीफी है। और यहाँ पर जो हादिरुन का लफ्ज है ये अकेला है, ये मुफरद खबर है। कभी ऐसा होता है कि खबर भी मुरक्कब तौसीफी हो जाती है, ठीक है ना। अब इसकी मिसाल क्या है कि खबर मुरक्कब तौसीफी है, मुब्तदा अकेला है। तो इसकी इन्होंने एक और मिसाल ये दी है, इन्होंने कहा ज़ैदुन, बोलिए, और देखिए जानबूझ के डैश लगाया ताकि पता लग जाए ये मुब्तदा है। ज़ैद यहाँ पे क्या है? मुब्तदा है। ज़ैदुन, फिर आगे का रजुलुन तय्यिबुन। अच्छा, ज़ैद तो मारूफा है क्योंकि इसमें अलम है, और रजुलुन तय्यिबुन को नकिरा कर दिया क्योंकि खबर की कैटेगरी में आ गई। तो लिहाजा इन्होंने कह दिया ज़ैदुन रजुलुन तय्यिबुन, ज़ैद एक अच्छा मर्द है। अब यहाँ पर ज़ैद मुब्तदा अकेला है और रजुलुन तय्यिबुन यहाँ पर मुरक्कब तौसीफी पूरी के पूरी ये खबर की कैटेगरी में चली गई, और तर्जुमा हो जाएगा ज़ैद एक अच्छा मर्द है। यहाँ पे इन्होंने आगे लिखा हुआ है खबर मुरक्कब तौसीफी है। अब इसकी कुछ और मिसालें मैं चाहता हूँ बनाएं, आप लोग को अपने ज़हन से दे सकते हैं तो बताएं कामरान भाई। यानी कि मुब्तदा मुरक्कब तौसीफी हो या खबर मुरक्कब तौसीफी हो, या दोनों मुरक्कब तौसीफी हो, ये भी हो सकता है। ये मिसाल इन्होंने अभी नहीं दी, ये भी मिसाल बन सकती है कि दोनों मुरक्कब तौसीफी, मुब्तदा खबर। कोई भी एक मिसाल दे दें आप। चले मैं आपकी ये मिसाल लिख लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ, आपने क्या कहा? बोले कि अल मुअल्लिमुल मुजतहिदु हादिरुन। शाबाश, सही मिसाल बना ली भाई आपने तो। इसमें अब आप मुझे बताएं, अल मुअल्लिमुल मुजतहिदु, दोनों को अल लगाकर आपने मुब्तदा बना दिया, मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा, हादिरुन को नकिरा करके खबर बना दिया। तर्जुमा बताएं, अल मुअल्लिमुल मुजतहिदु हादिरुन, मेहनती उस्ताद मौजूद है, मेहनती उस्ताद मौजूद है, हाजिर है। अल मुअल्लिमुल मुजतहिदु हादिरुन, मेहनती उस्ताद हाजिर है। अब मेहनती उस्ताद मुब्तदा हो गया, हादिरुन ये खबर है। तो यहाँ पर मुब्तदा मुरक्कब तौसीफी और हादिरुन खबर अकेला। और एक और कोई मिसाल दे दे भाई, आप में से कोई दे सकते हैं तो दोनों में से। जी, जो ऑनलाइन है दोनों स्टूडेंट, आप में से कोई दे सकती है मिसाल? चलें, मैं अब एक ऐसी मिसाल देता हूं कि जिसके ना मुब्तदा भी मुरक्कब तौसीफी हो, खबर भी मुरक्कब तौसीफी हो। अब हम ये कर लेते हैं, ठीक है, हम ऐसी एक मिसाल बनाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह, मिसाल के तौर पर आप ये कर लें अस्समरुल, मैं वही आसान आसान मिसालें रखना चाहता हूँ जो पहले एक मतलब आई है। अस्समरुल हुल्वु, क्या कहा? अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, शैउन तय्यिबुन। देखिए मैंने दो लब लिखे हैं, दो यानी अस्समरुल हुल्वु ये दो हो गए, और शैउन तय्यिबुन ये भी दो हैं। और मैंने अस्समरुल हुल्वु को अल लगाया क्योंकि ये मुब्तदा है। अस्समरुल हुल्वु यहाँ क्या है? मुब्तदा है, ठीक है ना। और शैउन तय्यिबुन ये भी दो लफ्ज हैं, यानी अस्समरुल हुल्वु अपनी जात में मुरक्कब तौसीफी है,
और शय्युन तय्यिबुन भी मुरक्कब तौसीफी है, क्योंकि देख लें कि अस्समरुल हुलू में दोनों जगह अल है और शय्युन तय्यिबुन के ना दोनों जगह अल नहीं है, तो ये दोनों ही मिसालें किसकी होती है? मुरक्कब तौसीफी की होती है। तो क्योंकि अस्समरुल हुलू को हमें मुब्तदा बनाना था, लिहाजा दोनों पे अल लगाया, और शय्युन तय्यिबुन को खबर बनाना था, खबर आमतौर पर नकेरा होती है, लिहाजा दोनों से अल हटा दिया, और इन दोनों मिसालों को मिलाया तो ये 4 लफ्ज मिलकर एक पूरा जुमला इसमें बन गया। और इसका तर्जुमा कौन बताएगा? मुझे बताएं। अस्समरुल हुलू शय्युन सर इसका तय्यिबुन। मतलब है मीठा फल अच्छी चीज है। शाबाश, मोरे देखें जबरदस्त तर्जुमा किया उन्होंने, बता दिया भाई, मीठा फल अच्छी चीज है। तो जब हमने कहा मीठा फल अच्छी चीज है, तो मीठा फल मुब्तदा हो गया, अच्छी चीज है खबर हो गया, ये बन गई मिसाल। तो ये कायदा यहाँ समझाना चाहते हैं कि मुब्तदा और खबर कभी मुफरद होते हैं, अकेले अकेले होते हैं, जो पीछे आपने मिसाल पढ़ी। कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा भी बन रहा होता है, मुरक्कब तौसीफी खबर भी बन रही होती है। अब थोड़ा सा जरा दिमाग में जोर देना कि एक तो और कोई मिसाल आप लोग बना सकें। हाँ भाई कामरान भाई, या फिर आप आप बता दें, या सना आप बता दें जी, किसके दिमाग में आता है? अल कुरान करीम। चले मैं ये मिसाल लेता हूँ। सही है, आपने क्या कहा? एक मिनट। हाँ क्या? अल कुरानुल करीम। भाई गलती होगी तो क्या बता देंगे आपको? अल कुरानुल करीम ये मौसूफ सिफत हो गया, शाबाश, करम वाला कुरान। हाँ करम वाला कुरान। हाँ किताबुल्लाह। किताबुल्लाह ही, देखें ये भी सही बनाया आपने कि करम वाला कुरान अल्लाह की किताब है। सही है, किताबुल्लाह ही, किताब एक लफ्ज है, अल्लाह ही भी एक लफ्ज है, ये भी मुरक्कबी में आएगा, अगरचे मुरक्कब तौसीफी नहीं है लेकिन मुरक्कब इजाफी है, जो आगे जाके आप पढ़ लेंगे तो उसमें, लेकिन सही है मिसाल। अल कुरानुल करीम किताबुल्लाह, कुरान करीम अल्लाह की किताब है। अब ये करें और कोई मिसाल बना दे जरा, शाबाश, सही दिमाग चलाया कमर पे आपने। हाँ भाई उसमें आप बता सकती है कोई मिसाल सोचकर, या उर्दू में अगर कोई मिसाल आ रही है वो बोलते हैं, हम उसको अरबी में कोशिश कर लेते हैं, चले, ताकि थोड़ा सा दिमाग आपका ये बने कि ये कायदा लगाना आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। जी सर अगर मैं बोल रही हूँ ये मेरी किताब है, हाँ लेकिन सर वो तो सिंपल हो जाएगा। वो सिंपल हो जाएगा ना। आपने ऐसा बनाना है जिसमें मुब्तदा भी मुरक्कब तौसीफी हो, खबर भी मुरक्कब तौसीफी हो, या दोनों में से एक हो, वो भी चल जाएगा। चले ये पीली किताब मेरी है। अच्छा, पीली किताब नहीं, मेरी के लफ्ज को हटा दें। चले मैं आपको आसान सी बात, चले मैं एक मिसाल देता हूं आपको। मैं आपको कहता हूं नेक खालिद मेहनती तालिब इल्म है। चले बोले आप, नेक खालिद मेहनती तालिब इल्म है, कैसे अरबी बनेगी? पहले तो नेक खालिद की अरबी चाहिए हमें, मुरक्कब तौसीफी है। नेक खालिद, सर खालिदुन, खालिदुन चले मैं लिख रहा हूँ खालिदुन, आगे नेक का क्या होगा सर? साले होता है ना, सालेह, यस। तो मैं कैसे खालिदुन लिखूंगा? सालिहुन, खालिदुन सालिहुन लिखूंगा या अल लगाऊंगा साले पे? अल लगाएंगे सर, खालिदुन अस-सालिहुन। और खालिदुन की जगह खालिदुनिस सालिहु पढ़ेंगे, खालिदुनिस। हम इसको पढ़ेंगे खालिदुनिस सालिहु, क्योंकि जब भी अल आ रहा हो ना, अल और उसके पहले दो पेश हो तो एक पेश को काट के छोटा नून बढ़ा देते हैं, ये हमने कायदा पढ़ा था। खालिदुन अस सालिहु है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे खालिदुनिस सालिहु। बोलिए खालिदुनिस सालिहु। हाँ अब आप बोले मेहनती तालिब इल्म। अब तालिब इल्म मतलब तालिब इल्म को तालिबी कहते हैं, तालिबुन। अब आगे बोले चलें, मेहनती के लिए अभी वर्ड पढ़ा था कामना, मैंने बताया था। तालिबुन मुज्तहिदुन। अब दोबारा देखें, बोल लें खालिदुनिस सालिहु, बोले खालिदुनिस सालिहु, तालिबुन मुज्तहिदुन। तालिबुल मुज्तहिद, तालिबुल नहीं, तालिबुन मुज्तहिदुन। तालिबु मुज्तहिद, तालिबु भी नहीं, तालिबुन दो पेश लगाएं, तालिबुन मुज्तहिदुन। इस तरह दोबारा पढ़ें आप, खालिदुनिस सालिहु तालिबुन मुज्तहिदुन। बोले खालिदुन निस सालिहु तालिबुन मुज्तहिदुन। सना आप भी पढ़ के बता दें जुमला। खालिदुस सालिहु तालिबुल मुज्तहिद। देखिए खालिदु नहीं, खालिदुनिस सालिहु तालिबुन मुज्तहिदुन। खालिदुन तालिबुन तालिबुल मुज्तहिद। एक जुमला आपके और ध्यान में आ रहा है? बस आज मैं यही कायदा पढ़ाऊंगा भाई। इस कायदे की मुझे कल 5-5 मिसालें बना के लाके दें। आपको काम तो बहुत सारे देता हूं लेकिन आप लोग कर नहीं पाते हैं ये, तो इसकी 5 मिसालें बनाएगा। एक मिसाल ये हो सकती है, एक मिसाल ये हो सकती है, वो करियो अशहरुल रमजान। चलें अच्छा मैं बना लेता हूं, आपने जो कहा है, लेकिन इस पर अल नहीं लगा, इसको यूं करते हैं शहरु रमजान, क्योंकि देखिए ये इसका मतलब है रमजान का महीना। जब का के की का तर्जुमा आ रहा होता है ना तो फिर अल नहीं लगाते,
शाहरु रमदान, ये आगे जाके पढ़ेंगे आप, कायदा आ जाएगा। शाहरु रमदान, आगे चलें, शाहरु रमदान, रमजान का महीना। अब आगे बोलें। सर वो बरकत वाला क्या बोलते हैं? हाँ, बरकत वाला मुबारकुन, महीना बरकत क्या है? मुबारक, मुबारक। मुबारकुन। ये हो गया शाहरु रमदान मुबारकुन, यहाँ मुब्तदा मुरक्कब हो गया, ठीक है ना। अगरचे इस मुरक्कब का नाम मुरक्कब इजाफी है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। रमजान का महीना बरकत वाला है, और आप इसको यूं भी कह सकती थी, शाहरु रमदान शहरुन मुबारकुन, रमजान का महीना बरकत वाला महीना है, बरकत ये भी आप वाला, कह हम यही सकती बोल हैं। सकते हाँ, ये शहरुन मुबारकुन, दोबारा बोलने, बहुत अच्छी मिसाल बनाई आप। शहरु शहरु रमदान रमदान शहरुन मुबारकुन, शहरुन रमदान शहरु मुबारकुन। ये हो गई बात। जबरदस्त। आज बस मैं ये एक ही कायदा पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगले कायदे में भी ऐसी डिटेल है, एक एक करके, ताकि कंफ्यूज ना हो। अब आप इस कायदे की खूब प्रैक्टिस करें, और जितना भी पीछे पढ़ाया था ना, उन सबको दोबारा उसकी प्रैक्टिस करें, रट के ये कायदे याद करके आइएगा, और ऐसी 4-5 मिसालें बना के लाइएगा। शुरू में मैं यही पूछूंगा, इसी पे मैं रोक रहा हूँ। मा अलैना इल्लल बलाग।